میں آپ کو بتائیں کہ دھند نے لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شہر کی اہم شاہراہوں پر دھند کا راج برقرار ہے۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث موٹر ویز کو عوام کی حفاظت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ حد نگاہ کتنی ہے اور شہریوں کے لیے کیا ہدایات ہیں، تفصیلات جانتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ جی شاہزیب۔ جی بالکل، لاہور شہر اور اس کے رواحی علاقوں میں اس وقت شدید دھند پائی جا رہی ہے۔ دھند نے اپنے ڈیرے پورے طریقے سے جما لیے ہیں اور یقین کریں کہ 20 سے 30 فٹ کے بعد کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ اسی وجہ سے موٹر وے پولیس کی جانب سے بھی موٹر ویز کو بند کر دیا گیا ہے، جس کی تفصیلات کچھ یوں ہے کہ موٹر وے M2 کو لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کے باعث بند کیا گیا ہے۔ موٹر وے M3 فیض پور سے رجانہ تک بند کی گئی ہے، جبکہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہے۔ M4 عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیاں تک بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے بھی شہریوں کے لیے ہدایات جاری کی جا رہی ہے کہ شہری جو ہے وہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ شدید دھند ہے۔ افسوسناک واقعات بھی رونما ہو سکتے ہیں، کیونکہ موٹر وے کے اوپر بھی حد نگاہ جو ہے وہ 50 فٹ کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ فوگ لائٹس کے استعمال کو نہ صرف موٹر وے بلکہ شہر میں بھی استعمال کرنے کی یقینی بنانے کی جو ہے وہ ہدایات جاری کی جا رہی ہے۔ جبکہ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو شہری اس وقت شہر میں یا موٹر وے کے اوپر سفر کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہدایات ہیں کہ شہری دوسری گاڑیوں سے مناسب فاصلہ برقرار رکھیں تاکہ کوئی بھی افسوسناک واقعہ رونما نہ ہو۔ اگر آپ موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں تو ہیلپ لائن 130 سے، اور اگر آپ شہر کے اندر سفر کر رہے ہیں تو راستہ ایپ سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت شدید دھند جو ہے وہ نہ صرف لاہور کے باہر بلکہ لاہور کے اندر مال روڈ، جیل روڈ، فیروزپور روڈ اور مختلف علاقہ جات میں بھی پائی جا رہی ہے، اور حد نگاہ صرف اور صرف 50 فٹ کے قریب ہے۔ ٹھیک ہے شاہزیب، بہت شکریہ۔ اسموگ سے چھٹکارے کے اقدامات۔ لاہور میں پہلی مرتبہ مصنوعی بارش کا تجربہ۔ اسموگ کی شرح میں قدرے بہتری کے اثرات۔ صوبائی دارالحکومت میں اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 208 ریکارڈ کیا گیا۔ محمد اسامہ کی رپورٹ دیکھیے۔ فضائی آلودگی کی شرح میں کمی لانے کی کاوشیں۔ گزشتہ روز لاہور میں مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا، جس سے اسموگ کی شرح میں بہتری کے اثرات نمایاں ہوئے۔ 208 کے مجموعی اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ لاہور دنیا میں 6 نمبر پر ہے۔ لاہور کے علاقے مصر شاہ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 343، جبکہ مار روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 300 ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ روز لاہور کے 10 علاقوں میں مصنوعی بارش برسائی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مصنوعی بارش سے اسموگ کی شرح میں آئندہ 2 سے 3 روز تک کمی محسوس کی جائے گی۔ کیمرامین حافظ مبین کے ساتھ محمد اسامہ، لاہور نیوز۔ اسموگ اور خشک سردی کے اثرات، بچوں میں نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور خشک کھانسی میں اضافہ۔ محکمہ صحت نے نمونیا کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا۔ محمد بلال کی رپورٹ دیکھیے۔ اسموگ اور خشک سردی سے بچوں میں نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور خشک کھانسی میں اضافہ ہونے لگا۔ محکمہ صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری نے نمونیا بارے الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب کے تمام سرکاری ہسپتالوں اور CEOs ہیلتھ کو ہنگامی اقدامات کرنے کا مراسلہ جاری۔ ڈائریکٹر CDC ڈاکٹر یداللہ نے ہسپتالوں میں نمونیا کے حوالے سے فوری علاج کے اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ حالیہ دنوں چلڈرن ہسپتال سمیت دیگر ہسپتالوں میں نمونیا کے سینکڑوں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ سرد موسم میں انڈوں کی مانگ بڑھ گئی، مافیا کی چاندی۔ فارمی انڈے مزید 2 روپے مہنگے، قیمت 354 روپے ہوگی۔ انڈوں کی پیٹی 10,500 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ برائلر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری کی۔ مرغی کا گوشت 11 روپے سستا، فی کلو قیمت 434 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر ہول سیل 288، پرچون ریٹ 299 روپے کلو مقرر ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ سرد موسم میں انڈوں کی مانگ بڑھ گئی ہے اور مافیا کی چاندی ہو گئی ہے۔ فارمی انڈے مزید 2 روپے مہنگے، قیمت 354 روپے ہو گئی ہے۔ انڈوں کی پیٹی 10,500 روپے میں فروخت ہونے لگی ہے اور برائلر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ مرغی کا گوشت 11 روپے سستا، فی کلو قیمت 434 روپے ہو گئی ہے۔ زندہ برائلر ہول سیل 288، پرچون ریٹ 299 روپے کلو مقرر ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فارمی انڈے مزید 2 روپے مہنگے ہو گئے ہیں اور قیمت 354 روپے ہو گئی ہے۔ یوٹیلٹی سٹورز عوام کے سٹورز نہ رہے، صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صارفین ہی مستفید ہو رہے ہیں۔ عام صارف کے لیے اشیاء مارکیٹ ریٹ سے مہنگے داموں دستیاب ہے۔ زاہد عابد کی رپورٹ دیکھیے۔
आम सारिफ के लिए यूटिलिटी स्टोर फायदेमंद न रहा। अशिया आम मार्केट से भी महंगे दामों मिलने लगी। रियायती निर्ख पर सिर्फ बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम रजिस्टर्ड सारिफी मुस्तफीद हो रहे हैं। आम सारिफ को चीनी 155 रुपए किलो दी जा रही है, जबकि मार्केट में चीनी 150 रुपए फी किलो में मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर से आम सारिफ के लिए घी 420 रुपए, जबकि मार्केट में इसी मायार के घी की कीमत 400 रुपए फी किलो तक है। इसी तरह दीगर अशियाए जरूरिया भी आवाम को सस्ते दामों दस्तयाब नहीं। शहरियों की जुबान पर यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई और अशिया की अदम दस्तयाबी के शिकवे हैं। इसमें कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं किसी किस्म का। उसी को सहूलत है जिसको इधर पैसे मिलते हैं बेनज़ीर के। इसके अलावा दूसरे को बेनिफिट मिलना चाहिए भी, जिसको नहीं पैसे मिलते उसको राशन देना चाहिए। ये उल्टा निज़ाम है, उनको भी पैसे भी मिलते हैं, उल्टा राशन भी मिलता है। मार्केट के अंदर चीज़ों के रेट कम है, यूटिलिटी स्टोर पे ज़्यादा है, तो ये बेनज़ीर स्पोर्ट के वजह से तो ये 10 के अंदर से मेरे ख्याल 2 को मिलती है चीज़, बाकी अदरवाइज 8 को तो मिलती नहीं रही है। बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम में शामिल आवाम को घी, चीनी और आटे की खरीदारी के लिए दीगर अशिया की खरीदारी की भी शर्त है। सब्जियों फलों की कीमतों में शहरियों को चकरा कर रख दिया है। लहसुन 850, अदरक 750, प्याज 200, टमाटर 160 रुपये किलो फ़रोख्त, मटर 220, करेले 180, अरवी 170, मेथी 150, आलू 100 रुपये किलो बिकने लगे। अनार बदाना 950, खजूर ईरानी 620, अंगूर 500, सेब 380, अमरूद 200 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। तो ख़बर यह है कि फलों और सब्जियों की कीमतों में शहरियों को चकरा के रख दिया है। और लहसुन 850, अदरक 750, प्याज 200, टमाटर 160 रुपये किलो फ़रोख्त, मटर 220, करेले 180, अरवी 170, मेथी 150, आलू 100 रुपये किलो बिकने लगे। अनार बदाना 950, खजूर ईरानी 620, अंगूर 500, सेब 380, अमरूद 200 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं सब्जियों और फलों की कीमतों के बारे में। तो लहसुन 850 और अदरक 750, प्याज 200, टमाटर 160 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। नई मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफे के बाद पुरानी बाइक्स की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मार्केट में ख़रीदार ना होने के बराबर हैं। सेकंड हैंड बाइक्स के कारोबार ने मुंसलिक दुकानदार परेशान दिखाई देने लगे हैं। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। नई मोटरसाइकिलों के बाद पुरानी बाइक्स की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। मिकलोड रोड पर सेकंड हैंड बाइक्स की खरीदो फरोख्त का कारोबार ठंडा पड़ गया। मार्केट में गाहक न होने के बराबर पुरानी बाइक्स की कीमतों में भी 40% तक इजाफा हो गया। खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है गुज़िश्ता साल 70 से 75 हजार रुपए में मिलने वाली मोटरसाइकिल अब 90,000 से 1 लाख तक है। शहरी कहते हैं सेकंड हैंड मोटरसाइकिलों की कीमतें सुनकर वापस लौट जाते हैं। 70 जो है होंडा 70 वो 85,000 की थी। अब उसकी कीमत के बारे में आप जानना चाहे तो वो 1,60,000 पे पहुंच गई है। तो ये तो गरीब आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गई है। ठीक है, अब जिसकी सैलरी 20,000 है वो क्या करेगा। सेकंड हैंड मोटरसाइकिल अभी देखें 22 मॉडल है, 1,29,000 रुपये की जो उन्होंने खरीदी है। ये 23 मॉडल, ये मैंने रिसेंटली ली है रात को 1,28,000 रुपये की, जबकि इसकी कीमत है 1,29,000 रुपये की। नई मोटरसाइकिल पहले ही आम आदमी की पहुंच से बाहर है, अब पुरानी मोटरसाइकिल खरीदना भी गरीब के बस की बात नहीं रही। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान ने सर उठा लिया। कुदरती गैस की बंदिश और कम प्रेशर के शिकायत के बायस एलपीजी की तलब बढ़ गई। एलपीजी माफिया भी सरगर्म, शहर में ओगरा रेट पर कहीं एलपीजी दस्तयाब नहीं। फाहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान ने आ लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत आम होने लगी। शहरी मुतबादिल ईंधन एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर। एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग का सिलसिला भी जारी है। शहर में ओगरा रेट पर कहीं भी एलपीजी दस्तयाब नहीं। ओगरा ने रवा माह एलपीजी की कीमत 255 रुपए फी किलो मुकर्रर की। मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 280 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरी कहते हैं गैस आती नहीं, मजबूरन एलपीजी इस्तेमाल करना पड़ती है। हुकूमत एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग का नोटिस ले। मजबूरी है की करिए, इतों आग भरा के जाई दी है ते महंगी इन्नी गैस हैगी है। माड़े बंदे वास्ते बहुत परेशानी दा हाल होया और बंदा गुजारा की या बंदा गैस ही पुआवे या फिर बच्चों ही पाले। सारा दिन मेहनत मुशक्कत करने के बाद 400-500 रुपए अपने घर लेकर जाते हैं बड़ी मुश्किल से। उसमें हम क्या करें, क्या खाएं और क्या कमाएं। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर ने गैस की किल्लत के खदशे का भी इजहार कर दिया। उनका कहना है कि आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे से रवा माह एलपीजी लाने वाले 2 बहरी जहाजों की पाकिस्तान आमद मनसूख कर दी गई। दोनों जहाज श्रीलंका भेज दिए गए हैं।
पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट किरायों में 5 से 10% तक कमी कर दी गई। लाहौर से कराची का किराया 500 जबकि फैसलाबाद का 100 रुपये कम कर दिया गया। किरायों में कमी का इतलाक फौरी होगा। पंजाब हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिशें रंग ले आईं। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में नुमायां कमी कर दी। लाहौर से कराची का किराया 5500 से घटाकर 5000 रुपये कर दिया गया। कोयटा का किराया 5300 रुपये से कम करके 4800 रुपये कर दिया गया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 850 से कम करके 750 रुपये कर दिया गया। रावलपिंडी का किराया 1350 रुपये की बजाय अब 1250 रुपये लिया जाएगा। लाहौर से पेशावर का किराया 2400 रुपये से कम करके 2200 रुपये कर दिया गया। 200 रुपये की कमी के बाद लाहौर से मर्दान का किराया 2000 जबकि बाजोड़ का किराया 2800 की बजाय 2500 रुपये लिया जाएगा। तमाम इंटरसिटी अड्डों पर नए किरायानामे आवेज़ा कर दिए गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए सख्त क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। रज़ाकाराना तौर पर तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। 19 दिसंबर से बाज़ाब्ता ऑपरेशन शुरू होगा। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। शहर को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी इजलास में इंसदाद तजावुज़ात के ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तजावुज़ात कायम करने पर गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर्स और SPs को मुतल्लिका इलाकों में ऑपरेशन की तैयारी करने की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इंसदाद तजावुज़ात मुहिम में कोई रियायत नहीं होगी। 48 घंटे की मोहलत के बाद लाहौर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। ट्रैफिक की आमदोरफ्त में रुकावट दूर करने के लिए तजावुज़ात का खात्मा जरूरी है। दूसरी जानिब वज़ीर आला की हिदायत पर शहर के तमाम 9 जोन्स में अहम शाहराहों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा राफिया हैदर का तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन प्लान के लिए अहम इजलास हुआ। राफिया हैदर ने कहा रेगुलेशन विंग का 240 रुकनी खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया गया है। 14 ट्रक और दीगर मशीनरी इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होगी। शाहदरा मोड़, इमामिया कॉलोनी, पीर मक्की, माल रोड और इस्लामपुरा बाजार लिस्ट में शामिल। LOS, टूबुर्जी, यतीम खाना और दीगर इलाकों में भी ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर, SPs, ट्रैफिक पुलिस और बल्दिया उस्मा के अफसरान की निगरानी में होगा। मॉडल टाउन सोसाइटी का इंतखाबी मार्का साहबजादा सैफुल रहमान 1615 वोट लेकर चौथी मरतबा मॉडल टाउन सोसाइटी के सदर मुंतखब हो गए। उनके मुखालिफ उम्मीदवार को सिर्फ 192 वोट मिल पाए। साहबजादा सैफुल रहमान का कहना है कि मॉडल टाउन सोसाइटी के बहुत से अधूरे काम मुकम्मल किए जाएंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। साहबजादा सैफुर रहमान चौथी मरतबा मॉडल टाउन सोसाइटी के सदर मुंतखब। साहबजादा सैफुर रहमान को 1615 जबकि शिराज अल्ताफ को 192 वोट मिले। साहबजादा सैफुर रहमान कामयाबी के बाद काफिले की सूरत में चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की रिहाइशगाह पर पहुंचे और उनका खसूसी शुक्रिया अदा किया। साहबजादा सैफुर रहमान ने लाहौर न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मॉडल टाउन के रिहायशियों ने मुझे चौथी बार एजाज बख्शा। सोसाइटी के बहुत से काम अधूरे रहते हैं जो जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। मॉडल टाउन के मेंबरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे भारी अक्सरियत से जिताया और जो मैंने उनसे वादे किए हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला पूरे करूँगा। जिसमें सीवरेज है उसको हम रीवैम्प करेंगे, तमाम रोड्स की रीकारपेटिंग करेंगे, उसके अलावा अंडरग्राउंड वायरिंग करेंगे। मुश्किल टास्क है वो इंशाल्लाह ताला मैं पूरा करूंगा और मेरी टीम पूरा करेगी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की 9 मुंतखब सदर के एजाज में तकरीब खिताब में कहा कि जीतने वालों को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद है सैफुर रहमान लोगों की तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। सैफुर रहमान साहब को खास तौर पे दोबारा से ये टीम लीडर बने, इनको भी मुबारकबाद। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जो मेंबर्स इलेक्ट हुए उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। मॉडल टाउन सोसाइटी के इलेक्शन में 1800 से जायद वोट कास्ट किए गए। 9 मुंतखब सदर के हामियों ने जीत की खुशी में जश्न मनाया और मिठाइयाँ भी तकसीम की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर राहील अली के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा इंतखाबात के लिए 9 निकाती एजेंडा तैयार कर लिया। नून लीग आइंदा आम इंतखाबात के लिए इन 9 निकाती एजेंडे पर इलेक्शन कैंपेन करेगी। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम की तैयारियां शुरू कर दी। 9 निकाती एजेंडा में कहा है कि सरकारी और इंतजामी अमूर के अखराजात में कमी की जाएगी, आमदनी महसूलात में इजाफा और टैक्स के निज़ाम में असलाहात भी एजेंडे में शामिल। बरामदात में इजाफे के लिए फौरी और हंगामी इक़दाम किए जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, बिजली और गैस की कीमतों में कमी, खिसारे में चलने वाली सरकारी इदारे की इंतज़ामी कारी, नौजवान और ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौक़े भी नून लीग के एजेंडे में शामिल हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान में ज़राअत के जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इनकलाब लाना, निज़ाम अदल और इंसाफ में असलाहात भी नून लीग के एजेंडे में शामिल हैं।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि कौम को महंगाई, बेरोज़गारी और मौशी बदहाली की सज़ाओं से बरयत दिलाएंगे। नवाज शरीफ को सज़ाएं सुनाकर कौम और मुल्क को सज़ा दी गई। मुकदमात ही नहीं, मुकदमात बनाने वाले भी झूठे निकले। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातें हुई। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल और मियाँ साकिब, जावेद अली, आयशा अरशद समेत दीगर रहनुमाओं ने पार्टी सदर से मुलाकात की। पार्टी अमूर और आम इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू की गई। इस मौका पर नून लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक और मलिक अहमद खान भी मौजूद थे। रहनुमाओं ने सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात से कायद नवाज शरीफ की बुरैयत पर पार्टी सदर को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने नेक तमन्नाओं के इजहार पर रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा की तहरीक इंसाफ में शमूलियत, कहते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन बेआइन बन चुकी है। PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। हम कब तक वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से हटाकर खेल तमाशा करते रहेंगे। लाहौर से लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा की लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, तहरीक इंसाफ में शामिल होने का ऐलान कर दिया। कहते हैं PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। जब जब आइन से रूगर्दानी की गई, नुकसान उठाना पड़ा। ये इदारे हमारे इदारे हैं। रियासत की रूह ही अवाम की नुमाइंदों से होती है और आर्टिकल 5 में वफादारी सिर्फ रियासत की है, यानी अवाम की है। जब जब हमने आइन से इनहराफ किया है, हमारी रियासत को नुकसान पहुंचा है, हमारी ममलकत को नुकसान पहुंचा है। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम कब तक वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से हटाकर खेल तमाशा करते रहेंगे। ये कब तक चलेगा कि हम अपने इस तरह से जो है वज़ीर आज़मों को इस तरह से हटाने का खेल तमाशा करते रहेंगे। किसी को हम अदालती ज़रिए से हटाएंगे और किसी को हम जिस्मानी तौर पर ही मुनक़ते कर देंगे। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि 25 करोड़ आवाम अदलिया की जानिब देख रहे हैं। अदलिया को चाहिए कि वो इलेक्शन के हवाले से अपने फैसले पर अमल दरामद कराए। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की कारकुन महमूद बट की रिहाइश का आमद हमजा शहबाज ने महमूद अख्तर बट की से उनकी वालदा की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया और फातह ख्वानी की। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने महमूद बट की वालदा की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया और मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़रत के लिए फातह ख्वानी की गई। इस मौका पर इमरान अली गुराया और दस्तगीर शाह अहमद बट, साबिक MPA रुखसाना कौसर समेत दीगर भी मौजूद थे। ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस की सहूलत के बाद लाहौर के पुलिस खिदमत मराकज़ में रश कम हो गया। लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज़ में शहरियों का 80% रश कम हुआ। सिर्फ रेगुलर लाइसेंस के हसूल वाले अफराद का रश बरकरार है। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस की सहूलत ने पुलिस खिदमत मराकज़ में रश कम कर दिया। लाहौर के दीगर पुलिस खिदमत मराकज़ की तरह लिबर्टी लाइसेंसिंग सेंटर में भी शहरियों का 80% रश कम हो गया। शहरी ऑनलाइन की सहूलत से मुस्तफ़ीद होने लगे। सिर्फ रेगुलर लाइसेंस बनवाने वालों का रश बरकरार है। इंचार्ज लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज़ राना इमरान का कहना है कि क्रैकडाउन के बाद रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से 6 से 7 हज़ार लर्निंग लाइसेंस बनते थे। ऑनलाइन सहूलत के बाद 75 से 80% रश कम हो गया है। तकरीबन को 75-80% जो है ना वो रश कम हो गया ऑनलाइन लाइसेंस लर्नर लाइसेंस बनने की वजह से। अभी ज़्यादातर हमारे पास जो रश है वो जो लोग रेगुलर लाइसेंस बनवाने के लिए आ रहे हैं उनका, या जो अपना लर्नर लाइसेंस जो है ना रिन्यूअल करवाने के लिए आ रहे हैं उनका रश है हमारे पास। रश कम होने के बाद शहरी भी सहूलियात बारे मुतमईन है। कहते हैं रश कम होने से सहूलियात में बेहतरी आई है। यहाँ पे फैसिलिटी ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम टाइम पे आए हैं, टाइम पे हमें मिल रहा है, टोकन भी मिल रहा है। सहूलियात ठीक है, काफ़ी उस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, सारे मिलके मैनेज कर रहे हैं। जैसे टोकन वाइज उन्होंने काफ़ी आवाम के लिए जो सहूलत की हुई है, तो काफ़ी खुशाइन बात है ये तो हमारे लिए। सिस्टम ठीक है, देखने में बहुत तरतीब से हर जो है काम तरतीब से हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 1 माह के दौरान कम उम्र और बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले 17,180 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। पाकिस्तानी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और पाक जापान कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्फाक। दस्तखारी दुख्तर पाकिस्तान तंजीम और पाक जापान सोशल इकनॉमिक फोरम के तहत पाकिस्तानी मसनूआत को जापान में मुतारिफ करवाया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
दस्तकारी दुख्तर पाकिस्तान तंजीम और पाक जापान समाजी इक्तिसादी एसोसिएशन खवातीन और बच्चों की बहबूद के लिए मिलकर काम करेंगी। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कम्प्लेक्स में दोनों तंजीमों के अहदेदारान की मुलाकात। कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के हवाले से जल्द MOU साइन करने पर इत्तेफाक हो गया। दुख्तर पाकिस्तान तंजीम की सरबराह मुनीबा खावर का कहना था कि इस इकदाम से खवातीन को मुआशी इस्तेहकाम मिलेगा। भरपूर कोशिश होगी कि दोनों के ताउन से ना सिर्फ हम अपने यूथ पल्स के लिए काम करें, विमेन एम्पावरमेंट पे काम करें, अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, बेहतरीन रोज़गार के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए काम करें और अपने पाकिस्तान को भी बहुत खुशहाल और बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पाक जापान समाजी इक्तिसादी एसोसिएशन की सदर सितारा आरिफ ने कहा कि दुख्तर पाकिस्तान तंजीम की काविशों को सराहते और भरपूर सपोर्ट करेंगे। We are from the Pakistan Japan Socio-Economic Association. I am the president of this. Whatever the support would be required, whatever the advice, whatever the technicalities or technical support would be there, we, me, my staff, my PGSA team, from Japan side even we would be trying if some avenues be just there and we can carve out for our nationals. So this is a wonderful. जापानी वफ्द को इस मौका पर सवेनियर भी पेश किए गए। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। लेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनियों और वापडा की इंजीनियर्स एसोसिएशंस के एहतजाज भी काम न आए। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर महकमा बिजली के तमाम अफसरान की फ्री सप्लाई ख़त्म कर दी गई। तफसीलात फ़ाहद अमीन की रिपोर्ट में देखिए। महकमा बिजली के तमाम अफसरान की फ्री सप्लाई ख़त्म। मुफ्त यूनिट्स की बजाय बिजली अलाउंस अफसरान की तनख्वाहों में शामिल कर दिया गया। इंजीनियर्स एसोसिएशन वफाकी हुकूमत को कायल न कर सकी। रवा माह से ग्रेड 17 से 21 तक किसी भी अफसर को मुफ्त यूनिट्स नहीं मिलेंगे। मोनेटाइजेशन के तहत ग्रेड 17 के अफसरान की तनख्वाहों में 15,858 रुपए बिजली अलाउंस शामिल कर दिया गया। ग्रेड 18 के अफसरान 21,996 रुपए, ग्रेड 19 में 37,594 में शामिल, जबकि ग्रेड 20 के अफसरान की तनख्वाहों में 46,992 रुपए अलाउंस शामिल किया गया। रवा माह से तमाम अफसरान अपना बिजली का बिल खुद अदा करेंगे। वफाकी हुकूमत के फैसले पर अफसरान में मायूसी फैल गई। ज़राए के मुताबिक फ्री यूनिट्स के मामले पर लेस्को समेत तमाम तकसीमकार कंपनियों की एसोसिएशन ने अदालतों से रुजू करने का फैसला कर लिया। लेस्को अफसरान का कहना है कि फ्री यूनिट्स मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं, हमें फ्री यूनिट्स नहीं मिलते, उसके वाजिबात तनख्वाहों का हिस्सा हैं। लाहौर में सिग्नल फ्री सड़कें राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई। सिग्नल ख़त्म करने से सड़क पैदल अबूर करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर में 5 पैदल पुल तामीर करने का मंसूबा भी खटाई में पड़ा हुआ है। तफसीलात ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में देखिए। लाहौर में सिग्नल फ्री सड़कों पर राहगीरों की मुश्किलात में इजाफा। ट्रैफिक सिग्नल्स खत्म मगर सड़क अबूर करने वालों को कोई सहूलत नहीं दी गई। शहर में 5 पैदल पुल तामीर करने का मंसूबा भी खटाई में पड़ गया। पैदल पुलों पर तामीराती काम करके मंसूबा अधूरा छोड़ दिया गया। लिबर्टी चौक, वादद रोड और अल्लाहू चौक खियाबान फिरदौसी पर पैदल पुल बनने थे। अल्लाहू चौक और वादद रोड पर पैदल पुलों का काम अधूरा छोड़ दिया गया। सगिया रोड पर 2 पैदल पुलों की तामीर भी मुकम्मल न हो सकी। पंजाब हुकूमत ने पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस की तामीर की जिम्मेदारी टीपा को तफवीज की थी, मगर टीपा 5 बरस के दौरान शहर में सिर्फ 1 पेडिस्ट्रियन पुल तामीर कर पाया। लाहौर की अक्सर सड़कें टूट फूट का शिकार। LDA ने 62 करोड़ 90 लाख रुपए से कॉलेज रोड की बहाली का काम शुरू कर दिया। निगरान वज़ीर आला ने मंसूबे की तकमील के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है। 4.2 किलोमीटर तवील सड़क को बहाल किया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर में अक्सर सड़कें बरवक्त मुरम्मत न होने से शिकस्ता। LDA को सालाना 500 किलोमीटर सड़कों की मुरम्मत का टास्क सौंपा गया था। 3 सालों के दौरान 500 किलोमीटर तवील सड़कों की मुरम्मत का हदफ पूरा होना था। मुरम्मत न होने से सड़कें मजीद टूट फूट का शिकार हुई। ताहम LDA ने अकबर चौक के बाद कॉलेज रोड की बहाली का काम भी शुरू कर दिया। कॉलेज रोड पर इस्फाल्ट वर्क, लेन मार्क, ग्रीन बेल्ट का काम किया जाएगा। सड़क पर तजावुजात के खात्मे के बाद ट्रैफिक साइन बोर्ड नस्ब होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कॉलेज रोड मंसूबे की तकमील के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। 4.2 किलोमीटर तवील कॉलेज रोड की अमीर चौक तक बहाली से टाउनशिप, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, पंजाब सोसाइटी के मकीनों को फायदा पहुंचेगा। कैमरामैन इकरामुल हसन के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।